Good afternoon, everybody. I'm Priyanjali, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by brown rash on the skin that itch intensely. It may be due to chemicals in certain food, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is unknown. As per a study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffers from urticaria at one time. 60% of patients are in the group of 20 to 40 years. Incidence is higher in older age group. Urticaria is classified as acute and chronic, but most important part is not to ignore it. And doing self-medication can worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist on an online platform about urticaria and its management. So, ladies and gentlemen, girls and boys, we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Niharika Jha from Delhi, is here with us today. Dr. Niharika Jha is an MD Gold medalist in dermatology. She has a rich experience of 5 years and has been serving patients at Dr. Niharika's Skin and Health Clinic. A warm welcome to Dr. Niharika Jha. It's a pleasure, Dr. Niharika Jha, to have you here with us today as we are going to discuss about a very important topic, which is management of urticaria. First of all, I would like to ask you, ma'am, what is urticaria? So basically, urticaria, you described it very beautifully in your introductory speech. So urticaria, it is also known as hives, and in India we usually call it by the name of taffad. कहते हैं ना taffad उछल गया या पित उछल गई. So what happens in urticaria is that red colored rashes they develop. Is it okay if I speak in Hindi so that I can, Absolutely, absolutely. so a larger number of people might get benefited by it. तो अर्टिकेरिया इसको हम कहते हैं पित उछलना या हिंदी में कहते हैं तफड़ आ जाना, कुछ लोग दधोड़े के नाम से भी इसको कहते हैं. तो इसमें लाल रंग के बहुत ही खुजली वाले निशान बन जाते हैं जो शरीर से थोड़े से उभरे हुए रहते हैं, और ये एक ही दूसरी जगह पे भी हो सकता है. ऐसे नहीं कि एक जगह पर है तो वहीं पर ही सीमित रहेगा. और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार कुछ खाने की वजह से, कुछ दवाइयों की वजह से, या अगर आप किसी चीज से एक्सपोज हो गए हैं तो बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकते हैं. और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है. बड़े लोगों में थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन किसी भी एज ग्रुप में ये डेवलप कर सकते हैं. राइट राइट मैम. मैम कॉज, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा पता है कि कॉजेस क्या हो सकता है. चलो, फूड से एलर्जी हो गया है या सनलाइट से भी बहुत लोगों को हो सकता है, और कभी कभी कॉज अननोन. इसके अलावा मतलब मेनली पेशेंट्स में क्या पाया जाता है, कॉज क्या हो सकता है इसका? सो बेसिकली अगर हम बात करें, कॉज कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको बोलूँ तो ये कुछ भी हो सकता है, हर एक पेशेंट में अलग अलग रहता है. जो कॉमन कॉजेस रहते हैं यूजुअली कुछ खाने के बाद होते हैं. जो कॉमन, अगर हम दवाई कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में मैं बात करूँ जिसकी वजह से अर्टिकेरिया हो सकता है, तो हम पेशेंट को कहते हैं चाइनीज आइटम जिसमें अजीनोमोटो डलता है, वो काफी लोगों को हार्म पहुंचाता है. फिर अगर हम अपने सब्जियों के बारे में बात करें, अरबी एक बहुत ही कॉमन कॉज रहता है. बैंगन खाने की वजह से कुछ लोगों को अर्टिकेरिया भी होता है. फ्रूट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कीवी, पाइनएप्पल, ये कॉमन कॉजेस रहते हैं जिसकी वजह से होता है. नॉनवेज की अगर बात करें तो फिश से काफी लोगों को एलर्जी होती है. तो और जिनको ये एलर्जी डेवलप होती है, जरूरी नहीं है बचपन से हो. वो कहते हैं कि हम पहले तो खा रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अब तो हो रही है. सो एज आई टोल्ड यू, इट कैन डेवलप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. हो सकता है आप पहले कीवी खाते थे, नहीं होता, पर अब होता है. पर अब अगर होता है तो होता है. देन अदर कॉजेस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ हेयर डाई एप्लीकेशन ऑल्सो. हेयर डाई के एप्लीकेशन के बाद हो सकता है. समथिंग दैट यू इनहेल, आपने कुछ ऐसा इनहेल किया, उसके वजह से हो सकता है. दवाइयाँ बहुत कॉमन कॉजेस रहती हैं.
तो अगर दवाइयों की वजह से इस तरीके का रिएक्शन रहता है, अर्टिकेरियल रिएक्शन रहता है, तो वो यूजुअली विद इन द सेम डे वो निकल के आ जाता है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस, अगर आप हाल फिलहाल में बीमार पड़े हो, सर्दी खांसी जुकाम हुआ हो, लूज मोशंस हुए हो, पेट खराब हुआ हो, तो खाने के वजह उसके वजह से भी कई बार अर्टिकेरिया हो सकता है। बाकी ऐसे टोल्ड यू इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट अभी तक अगर मैं अपने जितने भी साल मैंने प्रैक्टिस करी उसमें सबसे अनयूजुअल जो मेरे पास केस आया था, वो पेशेंट ने खुद ही आइडेंटिफाई किया था कि जब भी वो कैरेमल पॉपकॉर्न खाती है उसको हो जाता है और नॉर्मल पॉपकॉर्न से नहीं होता। तो उसके बाद मुझे कभी ऐसा केस नहीं मिला, बट कैरेमल पॉपकॉर्न से वो पेशेंट को एलर्जी होती थी, जब भी खाती थी उसको थप्पड़ उछल जाते थे, नॉर्मल पॉपकॉर्न से नहीं होता था। तो हर एक पेशेंट में का कॉज अलग रह सकता है, बट दीज आर द कॉमन कॉजेस एज आई हैव टोल्ड यू। राइट। वेल व्यूअर्स, जैसे कि हमें पता चल गया है कि कॉज जो है कुछ भी और किसी भी सिचुएशन में आप सफर कर सकते हैं इस चीज से। सो आपके पास सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि आप अपने नियरेस्ट एक्सपर्ट के पास जाए फॉर अ बेटर कंसल्टेशन। डॉक्टर विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल आपके लिए है कि एक्यूट अर्टिकेरिया और क्रॉनिक अर्टिकेरिया कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, क्या है दोनों चीज, अलग कैसे है दोनों एक दूसरे से? देखिए, दोनों अर्टिकेरिया के फॉर्म से एक्यूट और क्रॉनिक, तो एक्यूट और क्रॉनिक के एक्चुअली कॉजेस भी अलग रहते हैं। जो एक्यूट कॉजेस, जो एक्यूट अर्टिकेरिया रहता है वो अभी रीसेंट ऑनसेट का होता है, कि वो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, एंड यूजुअली 4 हफ्ते तक में हम उसको एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं, 4 से 6 हफ्ते तक में। राइट। पर अगर आपका अर्टिकेरिया 6 हफ्ते से ज्यादा भी प्रोलॉन्ग करता है तो हम लोग उसको क्रॉनिक की कैटेगरी में डालते हैं। जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया रहते हैं उनमें कुछ जांचें करानी बहुत जरूरी रहती है, जिनमें से रहता है सीबीसी, कम हीमोग्लोबिन की वजह से हो सकता है। थायराइड प्रॉब्लम्स में कई बार थायराइड जो है वो अपने आप को हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट रहते हैं जो ऐसे प्रेजेंट करते हैं, और उनमें कॉमन भी ज्यादा रहता है। फिर एक यूरिन इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली ये फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यूरिन रूटीन का टेस्ट कराएं। कई बार यूरिन के क्या कहते हैं इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से भी अर्टिकेरिया होता है, जो एक्यूट का भी कारण रहता है, जैसे मैंने आपको बताया किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से। और एक जिन लोगों की डाइटरी हैबिट्स बहुत ही इरेगुलर रहते हैं, कभी खा लिया सवेरे 9 बजे, कभी 2 बजे तक भी नाश्ता नहीं किया, तो उनमें एच पाइलोराई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जो अगेन क्रॉनिक अर्टिकेरिया की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया जैसे मैंने आपको बताया जो लंबा चल रहा है, कि 6 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, लगभग ऑन अ डेली बेसिस होता है। और एक्यूट को जो अभी रिसेंट ऑनसेट का हुआ है, हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है, 4 से 6 हफ्ते नहीं के अंदर अंदर की अगर हम बात करें तो। राइट। डॉक्टर, ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है इसके लिए? व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल? सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन दी सिवियरिटी, कि राइट। आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा सिवियर है। इसमें अर्टिकेरिया के साथ में मैं एक एंजियोएडिमा कंडीशन रहती है, जिसमें होठों पे सूजन, आंखों पे सूजन, या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसा लगता है जबान फूल गई है, बोलने में तकलीफ होना। तो ये अर्टिकेरिया के साथ कॉमन रहता है, तो ये सिवियर कंडीशन रहता है, और इसको बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। ये ना सोचें कि पिछले बार भी हुआ था, रात भर में ठीक हो जाएगा, कल जाके डॉक्टर को देख लेंगे। दिस राइट। इज इमरजेंसी, दिस इज अ डर्मेटोलॉजिकल इमरजेंसी। घर के पास कोई भी हॉस्पिटल है, उधर जाके तुरंत इंजेक्शन लगाएं। ये हर डॉक्टर को पता रहता है कि इसमें कौन से इंजेक्शन लगाने रहते हैं। तो ये हो गया एकदम सिवियर कैटेगरी की बात करूं। फिर उसके बाद देखते हैं मेनली एंटीहिस्टामिन्स हम लोग क्या कहते हैं देते हैं पेशेंट को, एंटीहिस्टामिन्स देते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर कितने डोज में देनी है, किसी की एक दवाई से भी कंट्रोल में आ जाते हैं, किसी को हम लोग को डोज बढ़ा करके भी देनी पड़ती है। कारण जो होता है उसको हमें ठीक करना रहता है। और अगर बस इससे ठीक नहीं होता है तो हमें कई बार पेशेंट को स्टीरॉइड पे भी डालना पड़ता है। पर स्टीरॉइड पे हमेशा पे नहीं रहता, पेशेंट धीरे धीरे करके कम करके विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन कई बार अगर बस नॉर्मल दवाइयों से अगर एंटीहिस्टामिन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं हो पाता है, तो फिर उस केस में पेशेंट को स्टीरॉइड के ऊपर भी हमें डालना पड़ता है। राइट। राइट डॉक्टर, ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने जाना। अगेन ट्रीटमेंट्स में भी आई थिंक एक कॉमन चीज जो आ रहा है कि हम हर इंसान के लिए ट्रीटमेंट्स आई थिंक अलग अलग अवेलेबल है। अगेन आपको अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास
जाना ही पड़ेगा. That's what we would suggest you. We बिल्कुल. move on to our next question, doctor. Differentiate हम कैसे करेंगे urticaria और urticarial valgaris में? अर्टिकेरिया वैस्कुलाइटिस में. सो Right, right. बेसिकली अर्टिकेरिया और अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस दोनों एक जैसी दिखने वाली कंडीशन रहती है, दोनों में ही तप्पड़ बनते हैं. पर अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस अर्टिकेरिया से थोड़ा अलग रहता है. कैसे अलग रहता है? जैसे जो अर्टिकेरिया के निशान रहते हैं वो यूजुअली 24 घंटे में बैठ जाते हैं, पर अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस के जो निशान हैं वो क्या कहते हैं 24 से 48 घंटे के बाद भी बैठने में समय लगाते हैं. वो तो नहीं बैठते 24 घंटे के अंदर अंदर. अर्टिकेरिया कभी भी निशान छोड़ के नहीं बैठता. जब भी आपके तप्पड़ बैठेंगे, भले ही बिना दवाई खाए बैठे या दवाई खाने के बाद बैठे हो, वो हमेशा एक नॉर्मल स्किन छोड़ करके जाएगा. पर अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस में वहां पे निशान पिगमेंटेशन बन जाता है. ठीक है. देन अगर सिस्टमिक सिम्टम्स की बात करें तो अर्टिकेरिया सिस्टमिक सिम्टम्स में क्या हो गया? जोड़ों में दर्द होना, बुखार आना, ये सारी चीजें अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस में देखी जाती है. अर्टिकेरिया में यूजुअली नहीं देखी जाती. बुखार खैर अर्टिकेरिया में आ सकता है, लेकिन ये जोड़ों में दर्द अगर मैं पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो वो अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस में ज्यादा रहता है. तो इसके निशान में अगर देखेंगे अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस के तो फिर पेनफुल लीजन कहते हैं विद बर्निंग सेंसेशन, और अर्टिकेरिया में इचिंग ज्यादा रहती है. तो ये Right. देखने में एक जैसे रहते हैं पर ये होती अलग अलग चीजें हैं. ये कुछ चीजें जैसे आप पहचान सकते हैं कि वो ज्यादा पेनफुल हैं, आपके जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, आप निशान छोड़ करके बैठ रहे हो और 24 घंटे के अंदर नहीं बैठ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अर्टिकेरिया नहीं अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस हो. और अगर अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस का शक होता है तो उसके लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है. उससे जांच पक्की हो जाती है हमें कि मतलब ये अर्टिकेरिया ही है या अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस है. Right. डॉक्टर, अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी, चलो शरीर में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज हो, पेशेंट्स बहुत डरते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, कि एक इलाज के लिए जाएंगे, पता नहीं कितने इलाज निकल जाएंगे, कितने प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे. तो इसी चक्कर में सब घर पे बैठ जाते हैं कि चलो थोड़ा देर बैठ लेते हैं या किसी बुजुर्ग इंसान से सलाह ले लेते हैं, कोई होम रेमेडी हम ट्राई कर लेते हैं. तो अर्टिकेरिया के केस में अगर समय पे ट्रीट नहीं किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर अर्टिकेरिया को हम लोगों ने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो सबसे पहले पेशेंट ही डिस्ट्रेस में रहेगा. वो जितना उसको खुजलाएगा वो उतना ही और बढ़ेगा. तो सबसे पहले तो उसको खुजलाए नहीं. अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहे तो खुजलाना बंद करें. दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने आपको सिवियरिटी के बारे में बताया कि अगर ये सिवियर हो गया तो इट कैन टर्न आउट टू बी लाइफ थ्रेटनिंग. तो ये लाइफ थ्रेटनिंग जो सिचुएशन थी, ये 3 साइंस याद रखें कि अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है और क्या कहते हैं बोलने में तकलीफ हो रही है, होठों पे सूजन आ रही है, आंखों पे सूजन आ रही है, प्लीज घर पे बैठ करके फोन मिला करके इधर उधर से सलाह ना लें. डायरेक्टली अपने क्या कहते हैं जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पे आप जाए. और क्या कहते हैं बाकी मेनली यही है कि कई बार हमें कारण पता चल जाता है तो हम आपको बेटर हेल्प कर पाते हैं. हॉस्पिटल आने से, डॉक्टर के पास आने से घबराई नहीं. मैं समझती हूँ सबका अपना बहुत बिजी रूटीन है और उससे टाइम निकाल करके कहीं पर भी जाना बहुत मतलब बड़ा काम लगता है लोगों को. लेकिन अगर आप फिट नहीं है, आप हेल्दी नहीं है तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा. अगर आपको खुजली हो जा रही है, आप लगातार खुजा रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा काम करने में. और फिर आपको बढ़ा करके और परेशानी से अच्छा पहले आ जाए आप, तो आपको भी थोड़ा पहले रिलीफ मिल जाएगा. काफी बार पेशेंट सोचते हैं कि हमें बहुत सारी जांचें करवानी पड़ेंगी. हाँ, जांचें हो सकता है आपको करवानी पड़े, पर अगर हम जांच नहीं करवाएंगे तो हम जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो घबराएं नहीं, डॉक्टर के पास जाएं. कई बार आपको लगता है कि बहुत भीड़ होती है तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाएं तो शायद आप भीड़ से बच जाएं. लेकिन इग्नोर नहीं करें. बस मैं यही कहना चाहूंगी, इग्नोर नहीं करें. कोई भी छोटी सी चीज बड़ी बन सकती है. यूजुअली ये कंट्रोल में रहती है, अदरवाइज अर्टिकेरिया मोस्टली कंट्रोल में रहती है. पर कभी कभी ये बहुत परेशान करती है, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. एंड देन आई सेड टोल्ड यू समटाइम्स मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है. रहने को तो ठीक रहे, नहीं तो परेशान कर देती है. राइट, राइट. वेल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. शरीर को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए.
कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उसको हम ज्यादा इलोंगेट करते हैं, ज्यादा लंबे समय तक उसे खींचते हैं, तो वो बढ़ते ही जाता है, वो कम नहीं होता है कभी कम भी। नहीं होगा। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से दैट प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप नहीं जाए उतना दूर, आप पहले ही उसे रोक दे, और आपका हेल्प, आपका सहायता करने के लिए हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। डॉक्टर, एक और सवाल है जो बहुत कॉमन हो गया है आज। कोई भी बीमारी हो, हम देखते हैं कि उसका जो शुरुआत है कहीं ना कहीं स्ट्रेस से होता है। तो बिल्कुल। अर्टिकेरिया क्या स्ट्रेस से हो सकता है कहीं ना कहीं, और अगर हो सकता है तो किस प्रकार का होता है? देखिए, बिल्कुल स्ट्रेस से एग्रीवेट होता है। स्ट्रेस से अर्टिकेरिया और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, डर्मेटोलॉजी की तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है स्ट्रेस से एग्रीवेट होती हैं। तो यूजुअली ये उन पेशेंट से एग्रीवेट रहती है जो ऑलरेडी नोन पेशेंट्स हैं अर्टिकेरिया के। तो यस, इट कैन एग्रीवेट। कुछ पर्टिकुलर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, अगर मैं बहुत ही प्लेन शब्दों में कहूँ, वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ सकता है। किस प्रकार का, कहने का मतलब कि नॉर्मल अर्टिकेरिया की तरह ही प्रेज़ेंट करेगा, वो कोई अलग तरीके से नहीं प्रेज़ेंट करेगा, प्रेज़ेंट वैसे ही करेगा, लेकिन हाँ, स्ट्रेस उसका एग्रीवेट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट। डॉक्टर, हमने ये भी सुना है कि अर्टिकेरिया जो है रात को ज्यादा हमें प्रॉब्लमेटिक दिखता है, या ज्यादा हम सफर करते हैं नॉर्मली रात को। ये क्यों होता है? देखिए, अर्टिकेरिया जो है ना, वो दिन में रात में कभी भी हो सकता है। रात में कोई भी इची डिसऑर्डर जो है ना, वो ज़्यादा फ़ील होती है, क्योंकि रात में इंसान रिलैक्स होता है, मतलब सवेरे पे काम करता रहता है तो इग्नोर कर देता है, राइट। इग्नोर करना आसान होता है। जब रात में रिलैक्स घर पे बैठा है आराम से, तो वो खुजली हो रही है, तो वो उसको मतलब ज़्यादा फ़ील होती है। तो नॉट ओनली इन अर्टिकेरिया, क्या कहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं, बाकी इची डिसऑर्डर्स को भी देखें, तो वो पेशेंट वो यूजुअली वो कहता है कि जब मैं रात में रहता हूँ, तब मतलब रात का टाइम रहता है, तब ज़्यादा होती है। कुछ अदर कारण भी अगर मैं बोलूँ, जो कि बहुत कॉमनली वो नहीं है, लेकिन जैसे कि कभी भी हम जो फूड आइटम्स की वजह से रहते हैं, बाहर का खाना यूजुअली रात में खाते हैं, सवेरे का नाश्ता घर पर ही रहता है, मोस्ट ऑफ राइट। द पेशेंट, मोस्ट राइट। ऑफ द लोगों का। या फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी रात में ही होती है, दिन में सवेरे को ज़्यादातर नहीं होती। फिश अगर हम कंज़्यूम करें, तो रात में ही ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। सवेरे-सवेरे नाश्ते में फिश नहीं खाते। तो राइट। ये कुछ अदर कारण हो सकते हैं कि हाँ, रात में क्यों हो रही है, बट इन जनरल कोई भी इची डिसऑर्डर पेशेंट को रात में ज़्यादा लगती है, ज़्यादा फ़ील होती है। बेसिकली ऑल वी आर ट्राइंग टू से कि सब कुछ जो है आपके दिमाग में है, इट्स ऑल इन योर हेड। No, तो जैसे, it is more. You feel more during the night time because राइट। you राइट। you are free of other responsibilities at that point of time. सवेरे में आप बाकी काम भी कर रहे रहते, तो आपके पास एग्जैक्टली। हमेशा सोचने का टाइम नहीं रहता कि हाँ, मुझे राइट। कोई चीजें होती है। राइट। राइट डॉक्टर। डॉक्टर, प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं इसके, जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, हम्म। जो सफर नहीं कर रहे हैं अर्टिकेरिया से, या बचना चाहते हैं इन फ्यूचर ताकि उन्हें ना हो, वो क्या हम्म। उपाय या स्टेप्स अपना सकते हैं? सिर्फ प्रिकॉशन, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते कि हमें ज़िंदगी में कभी भी अर्टिकेरिया नहीं हो। इट कैन हम्म। स्टार्ट फ्रॉम एज़ सिंपल एज़ एंट बाइट, कि आपको एक चींटी ने काट दिया। इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ अ ड्रग, कि आपने कोई दवाई खा ली, और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि किस कारण की वजह से हो रहा है। राइट। तो इट इज़ क्या कहते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड अर्टिकेरिया। बट वन्स यू आर अ नोन पेशेंट ऑफ अर्टिकेरिया, एक बार आपको अर्टिकेरिया हो गया है और आपको मालूम है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, पहले तो आप आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें। कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? अगर आपको एक्यूट एपिसोडिक अर्टिकेरिया, एक्यूट के बदले में एपिसोडिक का नाम लेना चाहूँगी। एपिसोडिक मतलब क्या, वो कभी-कभी आती है, हमेशा आपको नहीं होता, लेकिन 3 महीने में, 4 महीने में एक बार हो गया। तो उन पेशेंट को मैं यूजुअली कहती हूँ कि डायरी मेंटेन करें और उसपे लिखिए कि आपने सवेरे से शाम तक क्या खाया है। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया दाल, रोटी, चावल खाया है। कौन-सी दाल थी? मसूर की थी, तूर की थी, किस उड़द की दाल थी, किस चीज़ की दाल थी? सब्ज़ी में क्या था? भिंडी थी, बैंगन था, अरबी था, क्या था? वो पूरा डिटेल में लिखें। और जब भी आपके अर्टिकेरिया के एपिसोड होते हैं, आप उसको कंपेयर करें। हो सकता है कि आपको कुछ एक कॉमन चीज़ मिल जाए कि कि उस दिन भी ये खाया था तो हुआ था, और इस दिन भी ये खाया था तो हुआ है। और इस तरीके से वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ दिन उस दिन दवाई ली हो, तो पिछले बार भी जब लूज़ मोशन की दवाई ली थी तो ऐसा ही हुआ था, अब की बार भी जब भी लिया है तो भी ऐसा ही हुआ है।
पिछले बार जब चॉकलेट जिसमें नट्स रहते हैं वो खाई थी तो भी तब हुआ था, और अभी हुआ है जिसमें चॉकलेट जिसमें नट्स है वो खाई है। तो एक डायरी मेंटेन करें, स्पेशली अगर आपको एपिसोडिक अर्टिकेरिया हो रहा है, और इस तरीके से आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको पता चल गया है जैसे कि आपको पर्टिकुलर दवाई से एलर्जी हो रही है, तो आप जो कि नॉर्मल पेशेंट को दवाइयों के नाम याद नहीं रहते हैं, इट्स वेरी सिंपल फॉर अस टू रिमेंबर, जब हमने पूरी जिंदगी उसी की पढ़ाई करी है। पर अगर आप किसी पेशेंट से पूछोगे तो उनको नाम याद करना सिंपल नहीं रहता। इन दैट केस मेंटेन अ ड्रग अलर्ट कार्ड कि मेरे को ये दवाई से एलर्जी है, ये दवाई या इस ग्रुप की कोई और दवाई मुझे ना दे, कृपया अवॉइड करें। तो कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाए किसी भी प्रॉब्लम के लिए, सबसे पहले आप उनको ये बताएं कि मुझे ये दवाई से एलर्जी है। इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। जिनका क्रॉनिक अर्टिकेरिया है और लगातार हो रहा है, हर दिन हो रहा है, आपको हर खाने से तो एलर्जी नहीं हो सकती, तो उन केस में हम लोग को इंटरनल कॉजेज ढूंढने पड़ते हैं। इंटरनल कॉजेज में जैसे मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन की कमी होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, कहीं पर बॉडी में इन्फेक्शन होना, या फिर हो सकता है पेट में कीड़े होना, जो बच्चों में बहुत कॉमन कॉजेज रहता है पेट में कीड़े होना, ये कारण होना, या फिर एच पाइलोरी का इम्बैलेंस होना, ये सारे कारण हो सकते हैं। तो उस केस में आप उसका इलाज कराएंगे तो आप काफी हद तक सुखी रहेंगे। और एक्यूट या एपिसोडिक अर्टिकेरियाज में आपको अगर पता चल गया तो उसको अवॉइड करिए, आप फिर सुखी रहेंगे। ठीक है, राइट। ऑल्सो डॉक्टर, हम देखते हैं कि अक्सर जो प्रॉब्लम है उसका कारण ये है क्योंकि पेशेंट या इंसान अपने आप को लेके कॉन्शियस नहीं है। वो टालते रहते हैं चीज को, चलो आज नहीं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमें पहले तो अपनी बॉडी को जानना चाहिए। वी शुड नो कि हाँ, ये इससे हमारे बॉडी में शायद चेंज आ रहा है। अपने आप को जानिए और कॉन्शियस रहिए। थोड़ा सा अगर कॉन्शियसनेस हमारी लाइफ में अगर आ जाएगा, आई थिंक आधे प्रॉब्लम्स उसी से सॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर, ऑल्सो स्ट्रेस के साथ हम जानते हैं कि जैसे स्ट्रेस से हमारे कोई भी डिजीज हो उसका स्टार्टिंग इनिशियल हो सकता है। सेम वे डाइट और एक हेल्थी लाइफस्टाइल का भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रहता है। सेम सवाल हमारा अर्टिकेरिया से रिलेटेड भी रहेगा, डाइट से रिलेटेड अगर कुछ हमें ऑन अ डेली बेसिस अपनाना है या कुछ अवॉइड करना है, वो क्या हो सकता है? तो एज आई टोल्ड यू कि जैसे जब मैंने आपको कॉमन क्या कहते हैं फूड प्रोडक्ट के बारे में बताया था जिससे होता है, जिससे मैंने सबसे पहले नाम लिया था चाइनीज आइटम का। आजकल बच्चे शाम होती सबसे पहले जाते हैं मोमो खाने, है ना? तो मोमो, the Chinese item, they contain a lot of these things जिससे आपको अर्टिकेरिया प्रेसिपिटेट हो सकता है। और एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो वो आपको वैसे भी छोड़ देना चाहिए। वैसे भी बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। राइट, बाकी मैंने आपको बाकी चीजें जो बताई वो हेल्दी चीजें भी है, तो वो उसकी वजह से भी हो सकती है, लेकिन फिर आपको वो एक चीज अवॉइड करनी है। जो बाहर का खाना है वो वैसे भी मैदे वाला खाना, ओवर मतलब जनरली नॉट रिलेटेड टू अर्टिकेरिया, अवॉइड ही करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं पहले बोलना भूल गई थी, जिसमें एक लाइन बोलना चाहूंगी, जो आपने पूछा था कि अगर इलाज नहीं कराएंगे तो क्या होगा। जो आपका एक्यूट अर्टिकेरिया है, जो शायद अभी दवाई लेके कंट्रोल में आ जाएगा, वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कि अभी तो आपको एक बार एपिसोड हुआ है, अगर आपने इसका इलाज करवा लें तो शायद आपको क्रॉनिक अर्टिकेरिया नहीं डेवलप हो, नहीं तो इसको ऐसी बारी बारी इग्नोर करेंगे तो ये आपको रोज परेशान करने लगेगा। तो इलाज जरूर कराएं इसका। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर, ये क्या अर्टिकेरिया कंटेजियस है? हम अक्सर इससे परेशान रहते हैं, ये हम एक बस क्लियर कर दीजिए आज। जी, अर्टिकेरिया इज नॉट एट ऑल कंटेजियस इन इटसेल्फ, वो अपने आप में कंटेजियस नहीं है। पर अगर आपको किसी ऐसी बीमारी के वजह से हुआ है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, दैट इन्फेक्शन कैन बी कंटेजियस, पर अर्टिकेरिया इज नॉट। बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे कोविड हुआ था अभी पीछे, कोविड में हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा कि जब कोविड हो रखा था या जब उसे रिकवर कर रहे थे तो उन लोगों को अर्टिकेरिया हुआ था। अब अर्टिकेरिया कंटेजियस नहीं है, पर कोविड तो कंटेजियस है ना। तो द इन्फेक्शन, द रीजन ऑफ द अर्टिकेरिया, अगर इन्फेक्शन है और वो कंटेजियस हो सकता है कुछ केसेस में, पर अर्टिकेरिया ऐसा नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हैं जो पेशेंट है जिनको है तो उनसे मुझे हो जाएगा। इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है, अर्टिकेरिया।
राइट डॉक्टर, क्योंकि आपने मेंशन किया है कोविड के बारे में, तो हमें ये भी बताइए कि कोविड क्या अर्टिकेरिया या हाइव्स फेस पे किसी भी प्रकार लाने का कोई चांसेस है? मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन दोबारा। कोविड क्या हाइव्स हमारे फेस पे कॉज कर सकता है? पूरे बॉडी में कॉज कर सकता है, कहीं पर भी। तो जैसे कि मैंने बताया, इन्फेक्शन से रिलेटेड रहता है। कोविड भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन ही है। Right. तो उसके दौरान जब कोविड हो रखा है, इनफैक्ट जब कोविड से रिकवर कर गए उसके बाद भी हम लोगों ने काफी पेशेंट्स को देखा कि अर्टिकेरिया आ रहा है। तो जस्ट लाइक एनी अदर इन्फेक्शन, कोई और इन्फेक्शन के बाद भी आ सकता है। नहीं, क्योंकि कोविड एक नई चीज आई थी, तो हम लोगों ने उसके बारे में काफी पढ़ा, काफी हमें भी सीखने को मिला। और ये काफी पेशेंट है। अर्टिकेरिया वन ऑफ द कॉमन क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन, मतलब स्किन वाली मैनिफेस्टेशन हमने देखी थी कोविड पेशेंट्स में। राइट डॉक्टर, हमें पता है कि आज बहुत कम समय लेके हम आए हैं। ऑल्सो आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए आपने टाइम निकाला। बिफोर वी लीव डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई टेक होम नोट देना चाहते हैं? हाँ, टेक होम नोट मैं यही देना चाहूंगी कि देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इलाज कराएं। इलाज जरूर कराएं, नहीं तो एक्यूट अर्टिकेरिया क्रॉनिक पे कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप कभी कभी परेशान हो रहे हैं, अगर नहीं इलाज कराएंगे तो रोज रोज परेशान होंगे। आपके कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि शायद अगर हम उसको अवॉइड करें तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं हो। ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉज, या आपको किस चीज से ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये चीजें उनमें यूजुअली रहती है जो कि एपिसोडिक रहती है, मतलब कभी कभी हुआ। अगर क्रॉनिक हो रहा है तो हम लोग को इंटरनली देखना पड़ेगा कि इंटरनली तो पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। उनकी दवाइयों पर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें, मैं ये कहूंगी। हो सकता है आपको थोड़ी जांचें करानी पड़े, हो सकता है आपको 2-3 बार जाना पड़े। अर्टिकेरिया के अब बहुत सारे इलाज अवेलेबल है। एक सेट्रिजिन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अर्टिकेरिया के लिए दे सकते हैं। इनफैक्ट वो अर्टिकेरिया जो कि अब क्या कहते हैं, बारी-बारी दवाई देने से, स्टेरॉइड देने से भी कंट्रोल नहीं आ सकते, तो बायोलॉजिकल्स भी आ गए हैं उसके लिए। तो इस चीज से घबराइए मत, परेशान मत होइए। बस एक बार डॉक्टर से जाकर के मिलिए। और हो सकता है थोड़ा समय लगेगी कंट्रोल आने में, तो एकदम परेशान होकर इलाज नहीं छोड़ देना कि ये तो फायदा तो हो नहीं रहा है। हो सकता है थोड़ा समय ले ये चीज कंट्रोल में आने में, क्योंकि कॉजेटिव एजेंट हो सकता है पता चले, हो सकता है नहीं पता चले, क्या अदर कारण हो सकते हैं वो चीज से ये पता करने में, या फिर उसका जड़ पकड़ने में हो सकता है हमें टाइम लगे। एक दवाई नहीं काम करे तो हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी दवाई। तो ऑल दीज टेक टाइम, और ये एक ही दो दो दिन में नहीं होता है। तो काफ़ी लोगों का एक सिटिंग में मतलब कंसल्टेशन में कंट्रोल में आ जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को और ज़्यादा लगे। तो उससे परेशान मत होइए, थोड़ा भरोसा रखिए और पेशेंस रखिए, और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी। Well, thank you so much, Dr. Niharika Jha, for your valuable time. It has been a very informative session for all our viewers, and I'm sure Thank you for they will having me. use this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting urticaria. And in case if they get to see such symptoms, they know what to do instead of self-medication. It's better to approach a nearby dermatologist. It's great to hear from you, and we look forward to many more such sessions in the coming time with all our viewers. And thank you, viewers, for your excellent participation for today's session. To get latest update on how to keep your skin healthy, do like, follow our FB page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Have a good day. Bye.